If you are an average student struggling in chemistry, then this is a must-watch video for you guys because I will be spilling my entire chemistry strategy in organic and physical, that too in one video. So before moving ahead, let me quickly introduce myself to you guys. My name is Pratna Bhushan and I have scored 557 with an All India rank of 9304 in NEET 2025. So let's quickly start the video. So this will be a really helpful video for both droppers and freshers. So you can grab a notebook and write down the important points. This is literally the guide I wish I had when I started, but don't worry, I'll be sharing it all. Let me tell you how to approach physical chemistry. So first of all, let's start with teacher's notes. This should be your main source. When your classes are done, what you should be doing is you should be revising your teacher's notes properly and you should be solving your class questions in a very proper manner. That is, you should have known the concepts and know how to apply it so that you can switch to question practice. For question practice, you can basically choose one source that you will be practicing from throughout the year. For example, in my case, I personally preferred LN modules and tried to solve as much as I can. And for some chapters, I skipped because physical chemistry is that one part which I absolutely loved it because it had more of logic and of course less of exceptions. First of all, you should start with solving questions that are topic wise so that you can know your strength and weaknesses. After you are done with at least solving 100 questions from a particular chapter, you can switch to NCERT if you know the concepts very well. I know some chapters of class 11th like equilibrium and thermodynamics are very hard to understand, so reading NCERT should not be your priority. Only जब आपको लगे कि आपके concepts काफी अच्छे से clear हो गए and you are able to solve questions, then only you should switch to NCERT. And NCERT में भी theory पढ़ने से पहले what you should be doing is you should be thorough with the exam. And of course, when you are done with the chapter, you should definitely solve the PYQs of NEET and of course JEE Main, seeing the difficulty of NEET exam now. अभी आपने कोई चैप्टर 2 से 3 बार पढ़ लिया है, तो उसके बाद ट्राई करो कि आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ because summarizing and keeping it short will help you in the long run and इससे last month में आपको revision में काफी easy हो. Now let's start with subject full of exceptions. Of course आपको पता चल ही गया होगा inorganic chemistry. From hating it to loving it, it's been really a long way. बट मैं आपको हेल्प करूंगी जिससे आपको केमिस्ट्री का ये पार्ट भी काफी इंटरेस्टिंग लगे. सो फॉर डीलिंग विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई विल बी बेसिकली डिवाइडिंग इट इनटू टू कैटेगरीज. द फर्स्ट वन which includes more of theory and less of ratification. And this will be including 3 chapters. First is periodic table, second chemical bonding, and of course third coordination compounds. And the second category is of course जिसमें आपको ज्यादा रट्टा मारना है and उसमें बहुत सारे exceptions, colors ये सब होते हैं. So first chapter is P block, second D and F block, and third is practical chemistry. So now let's start with the first category. सबसे पहले read thoroughly your teacher's notes. जो भी आपके टीचर्स ने क्लास में आपको थ्योरी बताई है and जहाँ जहाँ पे भी exceptions बताए हैं, just learn it and understand it. उसके बाद आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करो जहाँ जो भी मॉड्यूल में दिया है, लाइक बिगिनर बॉक्स, इलिस्ट्रेशंस एंड टॉपिक वाइज बैक एक्सरसाइज. इसमें भी क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट. अभी आपको पता चलेगा कि आप कौन से पॉइंट्स अभी भी भूल रहे हैं. आफ्टर यू आर डन विद एटलीस्ट 1 और मैक्सिमम 2 रीडिंग्स ऑफ योर टीचर्स नोट्स, देन यू शुड जंप टू एनसीईआरटी एंड ऑफ कोर्स आप इसमें लाइन बाय लाइन पढ़ो. जैसे कि बायो की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट में, सेम उसी तरह इनऑर्गेनिक की भी एनसीईआरटी प्लेज अ क्रूशियल रोल फॉर क्रैकिंग नीट. सो इसमें आप अच्छे से एनसीईआरटी अंडरलाइन करो एंड जहां जहां पे भी आपको लगता है कि इस पॉइंट को समझने के लिए मुझे कुछ और रेफरेंस की जरूरत है, लाइक फ्रॉम टीचर्स नोट्स या कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ, सो हाईलाइट इट विद डिफरेंट कलर्स एंड यू कैन डेवलप योर ओन टेक्निक्स विच विल keep you memorize the things till the last.
And if you are a dropper and you are already well versed with the concepts and the theoretical points from these chapters, you can directly jump to NCERT and read it multiple ways, and then you can start solving questions. And of course इसमें भी PYQs काफी important है, because मुझे जब मैंने पहली दूसरी बार जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी तो मुझे पता ही नहीं लगता था कि इसमें बेसिकली क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। एंड एक बार आपने PYQ सॉल्व कर लिए तब आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ ये वाला पार्ट इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड टेबल्स को मैं कैसे याद करूँ। तो PYQs फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करो कि नीट के ज्यादातर PYQs आप कर लो, एंड उसके बाद इफ टाइम परमिट्स देन यू कैन ऑल्सो डू PYQs ऑफ JEE मेन। इसमें एक ही मंत्र है फॉर सक्सेस, दैट इज multiple revisions is equal to success, because the more you revise the faster you will be able to answer a question in the exam hall. And for second category, जैसे P ब्लॉक में इतने सारे ग्रुप हैं, लाइक ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, जो 6 ग्रुप्स हैं, आप ऐसा कर सकते हो, एक पिन पेज ले सकते हो एंड अपने कॉपी को लैंडस्केप मोड में रख के उसको डिवाइड कर सकते हो इन सिक्स ग्रुप्स, एंड इधर आप सारी प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, जैसे कि एटॉमिक नंबर, साइज, डेंसिटी का क्या ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सम स्पेशल पॉइंट्स की ग्रुप 14 के क्या स्पेशल फीचर्स हैं या ग्रुप 15 के क्या स्पेशल फीचर्स हैं। इससे क्या होगा कि 5-6 मिनट्स में आप उस पूरे चैप्टर से गो थ्रू हो जाओगे, एंड स्टिक इट ऑन योर वॉल इन योर स्टडी रूम, एंड जब आते जाते उसे देख लो, जिससे कि आपको एक्सेप्शंस नहीं भूलेंगे। पहले ट्राई करो कि डेली उन एक्सेप्शंस को याद करो, एंड देन स्लोली यू कैन स्विच टू रिवाइजिंग इट ऑन 5th डे एंड देन 14th डे एंड सो ऑन बिफोर टेस्ट। और लेट मी टेल यू कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे अच्छा परफॉर्म करे। So the thumb point for this is make your basics very strong. That is IUPAC and isomer. And important point is कि do not keep organic chemistry for the last. A particular reaction is very easy, but when it comes in the sequence of reactions, it becomes very enormous, and that's where the difficulty arises. So revision is the only way. So in 8 points, I will be telling you how you can easily score good in organic chemistry. First point is be attentive in your class. Second, practice all the reactions that your teacher told in the class and learn it by writing it multiple times. Third, start practicing questions and learn from your mistakes. जैसे कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आपको पता चलेगा कि मुझे इसका नेम नहीं लिखना रहा, तो ऑफ कोर्स आप रिवाइज करोगे IUPAC। एंड जब आप देख रहे हो कि यार 2 प्रोडक्ट्स में कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा बनेगा, तो आप जल्दी से अपनी कॉपी खोल के उसे रिवाइज कर सकते हो एंड कंपेयर कर सकते हो कि कौन से रिएक्शन में कहाँ पे हीटिंग है, कहाँ पे हीटिंग नहीं है, कहाँ पे क्या दिया हुआ है, कौन से कंडीशंस दिए जिससे कि प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे जबकि रिएक्टेंट सेम है। Fourth, start reading your NCERT. Fifth, do not skip theory points, because sometimes theory points are directly asked as assertion, reason, or which of the following statements holds true for a particular reaction. So it will definitely give you a boost of so many marks. Sixth point is don't skip examples. सॉल्व इट, एंड जो भी उसका सोल्यूशन दिया है वो भी पढ़ लो, क्योंकि वहां से भी एजर्शन रीजन बन सकता है, एंड एग्जाम्पल से कई बार स्ट्रेट डायरेक्टली नीट में क्वेश्चंस आते हैं, एंड इस बार भी आया। 7th, डोंट फियर फ्रॉम सॉल्विंग क्वेश्चन। आपको ये डर होगा कि गलत ही होगा क्वेश्चन, बट जस्ट एक्सेप्ट इट एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, बिकॉज दैट विल कीप यू गोइंग, एंड जितनी बार भी आप गलती करो उससे आपको ज्यादा देर के लिए याद रहेगा। 8th पॉइंट इज प्रिपेयर अ रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि आप रिएक्टेंट लिखते हो एंड कंडीशंस एंड क्वेश्चन मार्क फॉर प्रोडक्ट्स, एंड ऐसे ही हर चैप्टर की प्रिपेयर करते करते आपके पास लास्ट में एक रिएक्शन कॉपी बन जाएगी। दिस पर्सनली डिड नॉट सूट वेल फॉर मी, बिकॉज मुझे लगता था क्या पता कंडीशन पे ही क्वेश्चन आ जाए, क्या पता क्या हो जाए। मैं क्या करती थी, मान लिया हम कोई चैप्टर लेते हैं जैसे कि एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एंड देन मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती थी, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एंड मैं 1 to मैक्सिमम 2 पेजेस में एंड जो भी रिएक्शंस NCERT में गिवन है उसको मैं नोट कर लेती थी, एंड वो मैं हर दिन कोशिश करती थी कि मैं एटलीस्ट एक बार तो रीड कर ही लूं, एंड जब मुझे याद अच्छे से होने लगे थे मैंने उसको शिफ्ट कर दिया था कि मैं हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो देख लूं कि मुझे कितना याद है एंड कितना याद नहीं है। एंड इफ यू आर अ ड्रॉपर एंड आपके कोचिंग में भी ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं हुई है, सो ये आप ये घर पे स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपको ऑलरेडी काफी सारे कंसेप्ट्स बताऊंगे, एंड जितने देर में ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी आप वहां से कुछ थ्योरी पॉइंट्स सीख सकते हो, बट एटलीस्ट आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स तो याद हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स लास्ट 2 पॉइंट जो मैं आपको बोलूंगी फॉर स्कोरिंग गुड इन केमिस्ट्री एंड फॉर एनी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर एंड फॉर क्रैकिंग नीट इज कंसिस्टेंसी इज द की। आपको ये नहीं करना कि आप एक दिन 12-13 घंटे पढ़ रहे हो एंड सेकेंड डे आप पढ़ ही नहीं रहे हो। इससे बेटर है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जिससे कि लास्ट में बिल्डअप नहीं होगा एंड आपको उतना प्रेशर फील नहीं होगा। सेकेंड, डोंट स्किप टेस्ट। आप जितने ज्यादा टेस्ट दोगे आपको उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा।
So that's my whole strategy that I used in chemistry for cracking NEET this year. I hope this video would be useful to you guys, and आपके जो भी doubts हैं, you can write down to me in the comment section and I'll be eager to help you all. So if you like this video, please don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you for supporting me in my journey. Bye.